Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully done some of the theorems and also examples, and you can see the previous exercise too. So I hope you have understood all the theorems and the questions in the previous exercise that I have told you in the previous video successfully, right? So now it's time to move further here. So here in this video I'm going to start off a new topic which will just explain you the last 2 or 3 theorems remaining in this chapter. Then we will straightforward jump on to the next exercise, right, which is the last exercise of this chapter, right? So we are moving towards the end of this, you can see, chapter. So I hope you have understood all the important, you can see, phase through this topic. So if you just I hope that you have to just simply understand the theorems that I have explained you, right? So this whole chapter is revolving around the theorems. So अगर आपको यहाँ पे theorems समझ में आ जाएंगी, then you can just carry forward and solve any kind of question here, right? So let us start this video now. So इस video के अंदर जो topic जो remaining है, which will lead us to 2 or 3 new theorems here. So that is cyclic quadrilateral, right? So जैसा कि आपको पता है quadrilateral क्या होता है, एक you can see a 4-sided figure, right? So आप देख सकते हैं एक सर्कल के अंदर आपको एक 4-sided figure नजर आ रहा है, ABCD. So you can see a figure having 4 sides is known as quadrilateral, right? But here it is in a circle, so it is cyclic quadrilateral, right? Let me just explain you why it is in a circle. So यहाँ पे आप देख सकते हैं quadrilateral ABCD is called cyclic if all the 4 vertices of it lie on a circle. So एक quadrilateral को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कब बोलेंगे, जब उस क्वाड्रिलेटर के चारों जो वर्टिसेस हैं, पॉइंट्स हैं, वो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करेंगे, राइट? सो हियर यू कैन सी all the 4 points A, B, C and D are lying on the circle circumference, right? So that means that this ABCD quadrilateral now will be called as cyclic quadrilateral, right? So आप चाहे तो ऐसे बहुत सारे circles बना सकते हैं of various radius, right? आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है when you draw several circles of different radii and taking 4 points on each of them. So अगर आप ऐसे बहुत सारे circles अलग अलग radius के बनाएंगे, then taking 4 points on the circumference of those circles and join them, so you will find a, you can see, interesting property of a cyclic quadrilateral actually. So जैसा कि आपको पता चल गया कि cyclic quadrilateral क्या होता है, you can see a cyclic quadrilateral is a quadrilateral which is having its all 4 vertices on the circumference of the circle, right? So also यहाँ पे अब और क्या पहचान होगी हमारे पास कि एक quadrilateral cyclic quadrilateral है, right? So एक property है cyclic quadrilateral की कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका जो सम होगा दैट इज 180, राइट? वो आइदर पेयर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पेयर हैं अपोजिट एंगल्स के. आप देख सकते हैं एक तो है ए और सी और दूसरा है बी और डी. सो बोथ द पेयर्स विल हैव द सम as 180 degree, right? So let me just tell you that here you will finally get the result as angle A plus angle C will always be equal to 180. And angle B plus angle D will again be 180 degrees. So either of the pair of a cyclic quadrilateral will have 180 degree, right? So यानी कि दोनों pairs जो है उनका जो opposite angles का जो sum होगा that will be always 180 degree. So this topic now you can see that the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 lead us to a new theorem. So the theorem says that you can see either of the pair of a cyclic quadrilateral is having the sum as 180 degrees. So this is the new theorem. You can see 10.11 here. So I'm going to write the statement of that theorem. But before that, let me just make some space here. So I'm going to erase this. So students, now I have written the statement of the theorem 10.11 by which you will see here that the
sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180, right? So this theorem 10.11 states that the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. So आप देख सकते हैं, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स बना के उनको ज्वाइन करेंगे, so you will get a figure quadrilateral of 4 sides. Now always you can see when all the 4 points of a quadrilateral are lying on a circle, then that quadrilateral is known as cyclic quadrilateral, which will have an interesting property that the sum of opposite angles of a quadrilateral is 180, right? So both the pairs will have 180 as the sum, right? So this is what this theorem 10.11 says. अब यहाँ पर इस theorem का converse यानी कि vice versa भी exist करता है, जैसे कि पिछली सभी theorems का converse exist करता है. So इस 10.11 का जो converse है, that is theorem 10.12, which says कि if sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, then the quadrilateral is cyclic, right? So हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी भी quadrilateral के opposite pairs का जो sum है angles का वो 180 है, then वो quadrilateral क्या होगा? cyclic quadrilateral. और 10.11 क्या कह रही है कि अगर you can see the sum of either pairs of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180, यानी कि cyclic quadrilateral हमें पता है वो quadrilateral क्या है? cyclic quadrilateral है. That means कि उसके angles का sum क्या होगा? 180. बट इस केस में अगर एंगल्स का सम 180 है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा, यानी कि हमें एंगल्स का सम पता है 180 है तो वो क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, राइट? सो दे आर जस्ट वाइस वर्सा टू ईच अदर. सो आप बोल सकते हैं कि 10.11 का कन्वर्स क्या है? थ्योरम 10.12, एंड बोथ आई हैव रिटन हियर, यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, राइट? सो ये बहुत यूज होगा, यू कैन सी व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन देयर. So in exercise 10.5, so just remember these theorems what I'm going to explain you here, right? So this is, you can see all about cyclic quadrilateral here. So students, now we have done all the theorems of this chapter. So now it's time to move further to the examples of this chapter before moving on to exercise 10.5. So यहाँ पे इस chapter के अंदर total जो theorem है that is 10.12 up to 10.12, right? So now it's time to move further to examples, and then we will further move on to exercise 10.5, which is the last, you can see, exercise of this chapter, right? So here we will see some examples based on those theorems that we have done, right? So यहाँ पर you can see the example number 3 is that in given figure AB is a diameter, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे जो AB है ये diameter है, सेंटर में से पास आउट हो रहा है. सो हमें ये भी पता है कि जो डायमीटर होता है उसको हम लॉन्गेस्ट कोड भी बोल सकते हैं. सो इन अ वे वी कैन से दैट AB इज अ लॉन्गेस्ट कोड, राइट? सो यहाँ पे AB एक कोड का काम कर रही है एंड एज वेल एज इट इज अ डायमीटर ऑल्सो, राइट? सो आप चाहे तो इसको कोड बोल लीजिए या डायमीटर, व्हाटएवर यू कॉल, राइट? सो दे आर बोथ. सो अब यहां पर आप देख सकते हैं फर्दर CD इज अ कोड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो यहाँ पे आप एक कोड CD भी देख रहे हैं इसके अंदर. सो C and D, you can see joining them will get a line, and CD is also a chord here. So let me just tell you that CD की जो लेंथ है that is equal to the radius of the circle. यानी कि जो इस सर्कल की रेडियस है उतनी ही लेंथ इस CD कोड की भी है, राइट? दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब यहां पर AC and BD when extended intersect at a point E. So आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कोड्स और हैं, AC और BD. आप देख सकते हैं ये AC और BD दोनों कोड्स को जब हम एक्सटेंड करते हैं फर्दर आगे की तरफ, so they intersect at a point E. You can see here, right? So now what we have to prove here is that this angle AEB, this angle you can see is 60 degree, right? ये हमें प्रूव करना है यहां पर. So how we will prove this angle 60 degree? Let me just tell you, सबसे पहली चीज जो यहां पे हमें करनी है that is construction. So let me just start my solution here. So सबसे पहली चीज जो मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन में करूंगा that is I'm going to join this OC like this, right? Also you can see OD.
then also BC. So now you can see here what I have done the construction. The first step is join OC, OD and BC, right? So this is the first step that you have to do to prove that angle AEB is equal to 60. अब यहां पर सबसे पहली चीज जो हम एक थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं. Now if you just remember theorem 10.8, so that says that the arc make an angle at the center double than the angle made by the arc on the remaining part of the circle, right? So if you just remember the theorem 10.8, so by using theorem 10.8, which says that angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle, right? So if you just remember this theorem, so यहां पे आप देख सकते हैं मैं यहां पे CD कोड के बारे में बात कर रहा हूं. तो ये CD कोड के रिस्पेक्ट में ये आर्क दिख रही है आपको CD. सो चाहे तो आप ये बोल सकते हैं कि ये CD कोड एंगल बनाएगी, या फिर आप बोल सकते हैं कि CD आर्क एंगल बनाएगी. बोथ द थिंग्स आर सेम, राइट? सो आप देख सकते हैं अगर मैं CD कोड की बात करूं तो यहां पे आर्क की बात करूं, सो दैट इज सबटेंडिंग एंगल COD एट द सेंटर. दिख रहा है आपको यहां से? आप देख सकते हैं यहां पे ये CD कोड बोल लीजिए, आर्क बोल लीजिए. लेट मी जस्ट टेल यू बोथ द थिंग्स आर सेम. मैंने आपको बताया था थ्योरम एक्सप्लेन करते वक्त कि if I just get a rough idea here, so let me just draw a circle here. Now you can see अगर मैं यहाँ पे कोड बनाता हूं and at the center you can see this chord is making some angle here. So ये अगर मैं इसको AB नाम दूं कोड को, so आप बोल सकते हैं कि ये कोड जो है जो सेंटर पे एंगल बना रही है दैट इज AOB. या आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो आर्क AB है ये सेंटर पे एंगल बना रही है AOB. बोथ द थिंग्स आर सेम. सो आर्क और कोड सेंटर पे वही एंगल बनाएगी सेम, दैट इज AOB. सो यहाँ पे AB कोड का भी काम कर रही है, AB आर्क भी है. सो बोथ द थिंग्स आर सेम फॉर दिस थ्योरम हियर दैट आई हैव रिटन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CD आर्क जो है वो सेंटर पे एंगल बना रही है COD, एंड यू कैन सी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर सपोज कीजिए पॉइंट B है यहाँ पर. सो यानी कि आपको इस थ्योरम से पता चल रहा है कि सेंटर पे जो ये आर्क एंगल बनाएगी ये वाला एंगल COD, सो एंगल COD जो है वो क्या होगा, डबल होगा एंगल CBD के. आप देख सकते हैं CBD जो आर्क CD है वो B पॉइंट पे एंगल बना रही है, यानी कि B पॉइंट क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बन रहा है दैट इज CBD, राइट? सो उसके क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. वी नो दैट दिस फ्रॉम थ्योरम 10.8. सो यहाँ पे पहली चीज जो हमें पता चली है दैट ये कोड CD जो है वो सेंटर में एंगल COD बना रही है, और यू कैन सी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बना रही है CBD, राइट? सो यहाँ पे मैंने लिख लिया एंगल COD इज ट्वाइस ऑफ एंगल CBD, राइट? सो लेट मी जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ let me just make some space above so that I can show you further how to solve this question, right? So students, अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कोड CD है वो सेंटर पे एंगल बना रही है COD, जो कि क्या होगा, डबल होगा किसके, एंगल CBD के, जो CD कोड B पॉइंट पे बना रही है, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बना रही है. दैट इज फ्रॉम थ्योरम 10.8. अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं. यहां पे आप देख सकते हैं अगर मैं OC की बात करूं, सो ये OC क्या है, इस सर्कल की रेडियस. आप देख सकते हैं सेंटर से पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, राइट? देन यू कैन सी OD की बात करूं, सो OD भी यहां पर क्या है, रेडियस ही है, राइट? देन यू कैन सी ये जो CD कोड है ये भी जो है इसकी लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो अगर आप सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें यहाँ पे OCD, इफ आई जस्ट ड्रॉ इट राइट हियर लाइक दिस,
So I have drawn this triangle outside here to show you of which I am talking about. So आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ट्राइंगल OCD है इसमें OC भी रेडियस है, CD की लेंथ भी रेडियस के इक्वल है और ये OD जो है वो भी क्या है, रेडियस ही है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों की लेंथ जो है वो सेम है. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ये जो ट्राइंगल है OCD ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. क्योंकि हमें पता है कि जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो यू कैन सी now, as we can see that triangle OCD, let me just correct that. So triangle OCD is an equilateral triangle, right? So अब हमें ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 60 डिग्री ईच. Right, so this is what we know from the starting. So now, so you can see angles of equilateral triangle are 60 degree each. Right, so यहाँ पे हमें ये चीज पता है. That means कि हमारे पास अगर मैं बात करूं ये एंगल COD यानी ये वाले एंगल की COD कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री. राइट, सो अगर हमारे पास COD एंगल 60 डिग्री है तो CBD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से 2 को डिवाइड में भेज के. सो लेट मी जस्ट सिंपली टेल यू दैट दिस इंप्लाइज, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर हियर. सो यहां पे हमारे पास एंगल COD जो है वो कितना आ गया, 60 डिग्री. देन वी नो इफ आई जस्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव, let me just first make some space here. So here what I'm going to do is, you can see, let me just rub this. So अब यहां पे मैं COD की वैल्यू 60 डिग्री इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने वाला हूं. So that will be, you can see, 60 डिग्री equal to 2 into angle CBD. Right? So हमें पता है कि ये एंगल COD जो है वो ट्वाइस था, यानी डबल था किस एंगल के, CBD के. सो हमें ये पता है कि ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 30. अब जैसे मैं 2 को डिवाइड में भेजूंगा तो 60/2 ये क्या आ जाएगा, एंगल CBD. सो हमारे पास यू कैन सी दैट विल बी 230 या 60. सो 30 डिग्री आ गया. सो एंगल CBD हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 30 डिग्री. राइट, सो हमारे पास ये एंगल निकल गया, दैट इज 30. अब हमें क्या प्रूव करना था, एंगल AEB जो है वो कितना है, 60 डिग्री. रिमेंबर दैट. सो हमें ये चीज प्रूव करनी है कि ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का. अब हमने यहाँ पे ये 30 एंगल निकाल लिया. अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. सो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर कि ये जो AB है ये मैंने आपको बताया कि डायामीटर भी है और ये लॉन्गेस्ट कोड भी कहलाती है किसी भी सर्कल की. राइट, सो इफ यू जस्ट अगेन लुक एट थ्योरम 10.8 which says, you can see that chord subtend, you can see the angle at the center double the value of the angle subtended by the chord at the remaining part of the circle. Right, जैसे कि मैंने आपको यहां पे पहले भी बताया था कि आप देख सकते हैं कोड जो है जो सेंटर पे एंगल बनाती है, that is double the angle subtended by the chord at the remaining part of the circle. So आप देख सकते हैं सेंटर पे जो एंगल बनाया वो क्या है, AOB. सो सपोज कीजिए ये पॉइंट C था. सो अब जैसे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे पॉइंट C है, सो उसके ऊपर ये कोड क्या एंगल बनाएगी, ACB. सो यानी कि ये जो सेंटर पे एंगल बना है ये क्या होगा, डबल होगा इस एंगल ACB के. दिस इज व्हाट थ्योरम 10.8 सेज. मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट यू कैन फील फ्री टू यूज द थ्योरम्स हियर. राइट, सो यू कैन सी हियर, यहां पे भी यू कैन सी द सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज एग्जिस्टिंग हियर. लेट मी जस्ट शो यू. अब यहां पर AB जो है वो एक कोड है एज वेल एज डायमीटर. सो मैं यहां पे AB एक कोड मान के चलता हूं. एंड लेट मी जस्ट शो यू बाय मेकिंग दिस, यू कैन सी फिगर रफली टॉकिंग अबाउट व्हाट आई एम सेइंग. लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर हियर. यू कैन सी दिस इज द सर्कल, सेम सर्कल. सो यहां पे सेंटर O है, ये मैंने यहां पे डायमीटर बनाई जो कि लॉन्गेस्ट कोड होती है किसी भी सर्कल की.
सो अब यहाँ पे आप ए बी को कोड मान के चलिए। सो आप देख सकते हैं सेंटर पे जो ए बी कोड एंगल बना रही है वो क्या है, ए ओ बी, ये वाला एंगल, राइट। सो सेंटर पे जो कोड बना रही है एंगल दैट इज ए ओ बी। अब आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, सो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है हमें पता है 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी कितना है 180 डिग्रीज, राइट, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। सो अब ये ए बी कोड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा, डबल होगा किस एंगल के, जो ये ए बी कोड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनाएगी। सो आप देख सकते हैं रिमेनिंग पार्ट पे सी पॉइंट है। सो लेट मी जस्ट टेक द सी पॉइंट। अगर मैं इस ए सी को ज्वाइन करता हूं एंड देन सी बी को ज्वाइन करता हूं, यू कैन सी हियर। सो यहाँ पे एक ट्राइंगल की स्ट्रक्चर बन रही है, यू कैन सी। सो सेंटर पे जो एंगल बनाया दैट इज 180, जो कि क्या होगा, डबल होगा जो ये कोड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बनाएगी उसका, राइट। सो यानी कि ये जो एंगल एओबी है वो क्या है, डबल है किस एंगल के, ए सी बी के, राइट। सो अगर ये डबल है इसका तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यू कैन सी। यानी कि एओबी मुझे पता है कितना है 180। सो यहाँ पे ये दिखते हैं 2 इंटू ए सी बी। सो ये 2 डिवाइड में आएगा तो 180 अपॉन 2 आपके पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए सी बी ये वाला कितना आ जाएगा 90 डिग्री। सो लेट मी जस्ट टेल यू हियर दैट इन दिस, अब हमें यहाँ पे ये वाला एंगल जो है पता चल गया कितना है 90, राइट। आप देख सकते हैं ये ए सी बी जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए यहां पर कि ये एक ए सी ई जो है स्ट्रेट लाइन है, राइट। सो इसके ऊपर ये बी सी जो है वो रे स्टैंड कर रही है। बट बिफोर मूविंग ऑन लेट मी जस्ट राइट दिस थिंग हियर। सो लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस फर्स्ट। So that means you can see again from theorem 10.8. So मैं यहां पे दोबारा थ्योरम नहीं लिख रहा, that you can see the arc subtend the angle at the center double the value the arc subtending at you can see the remaining part of the circle, right. So वो आप लिख लेंगे यहां पे। Then you can see here आप देख सकते हैं यहां पे एंगल ए ओ बी जो कि ये कोड ए बी सेंटर पे बना रही थी दैट इज 180। सो लेट मी जस्ट टेल यू, सो एंगल ए ओ बी इज 180। सो यहां पे अगर मैं बात करूं एंगल ए सी बी की, यानी ए सी बी यानी यही कोड फिर ए सी बी पे क्या एंगल बनाएगी, जस्ट हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, राइट। सो आप देख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी मैंने अभी आपको बताया कितना है 180, क्योंकि मैंने बताया स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180, सो दैट विल बी 90 डिग्री। सो यही चीज मैंने यहां पे लिख दी इन अ मैनर्ड वे। सो यू डोंट हैव टू राइट दिस, you have to write this thing here, right? So for theorem 10.8 angle AOB is 180, so angle ACB will be half of angle AOB. So आप देख सकते हैं ये वाला एंगल ACB क्या होगा, सेंटर पे जो एंगल बनाया उसका हाफ होगा, राइट। ऐसे भी बोल सकते हैं the converse theorem, right? So now let us make some space further. अब यहां पे मैं जो बात कर रहा था यहाँ पे ए सी ई की, so यहां पे अगर मैं ए सी ई को ड्रॉ करूं, let me just draw it straight here. You can see this is point A, this point C, this is point E. So आप देख सकते हैं ये ACE एक straight line है, right? So let me just write down. So now ACE is a straight line, right? So हमें ये भी पता है कि straight line का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। So ये एंगल कितना है पूरा 180 डिग्री यहाँ पे, राइट। अब आप ध्यान से देखें तो C के ऊपर एक रे खड़ी है दैट इज CB, राइट, विच इज द एक्चुअल, यू कैन सी द कोड BC हियर, राइट। सो ये जो कोड BC है अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहां पे, राइट, सो यू कैन सी अब यहां पर ध्यान से देखें तो ये एक रे का काम कर रही है। सो यानी कि ये इस 180 डिग्री एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, राइट, जो कि ACB हमें एंगल पता ही है कितना है 90 डिग्री, हमने अभी फाइंड आउट किया, यू कैन सी। सो एंगल ACB जो है वो कितना था 90 डिग्री, हमने अभी फाइंड आउट किया, यू कैन सी ACB कितना है 90। सो यानी कि अगर एंगल ACB 90 है और टोटल कितना है 180, सो अगर मैं 180 में से इस 90 को माइनस कर दूं तो वो वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास BCE। सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट एंगल BCE will be 180 डिग्री माइनस एंगल ACB,
मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि मुझे पता है ये टोटल एंगल कितना है 180 का। सो अगर मैं इस पूरे एंगल में से इधर 90 वाला माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, दैट इज BCE। सो मैंने एंगल BCE कैसे निकाला, टोटल 180 में से मैंने एंगल ACB माइनस कर दिया। मुझे पता है ACB कितना है 90, सो 180 माइनस 90 दैट विल बी 90 डिग्री। सो यहां पे मेरे पास एंगल BCE आ गया, राइट। सो एंगल BCE की वैल्यू मुझे पता चल गई यहां से। सो यू कैन सी, सो यहां पे मैं लिख लेता हूं, यू कैन सी दैट अगर मैं अब मुझे इस ट्रायंगल से काम है, सो यहां पे मैं लिख लेता हूं ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, राइट। लेट मी जस्ट ड्रॉ द साइन ऑफ राइट एंगल। अब यहां पे आगे जो मुझे प्रूव करना था अगेन दैट वाज एंगल ACB इज 60 डिग्री, राइट। तो मैं कैसे प्रूव करूंगा, अब यहां पे अब देख सकते हैं ये जो लाइन है यहां से ये कहां ज्वाइन हो रही है, B के साथ, राइट। सो यहां पे आपको ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, यू कैन सी दिस BCE ट्रायंगल, राइट। सो यू कैन सी ट्रायंगल BCE। अब यहां पे ये जो एंगल B था वो हमने कितना फाइंड आउट किया था 30 डिग्री, रिमेंबर दैट। सो एंगल CBE हमने फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज 30 डिग्री। CBD बोल लीजिए आप या CBE, क्योंकि वो बन तो किस पे रहा है, B पे बना ना। तो चाहे तो आप इस CBD एंगल को फर्दर क्या लिख सकते हैं, और एंगल CBE इज 30 डिग्री, क्योंकि आप देख सकते हैं CBD बोल लीजिए या CBE, बन तो B पॉइंट पे ही रहा है ना एंगल। सो दैट मीन्स ये एंगल कितना है 30 डिग्री। सो बचा कौन सा एंगल, ये वाला। सो हमें ये भी पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है दैट इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। सो लेट मी जस्ट फर्दर मेक सम स्पेस। So in triangle you can see BCE, let me just write by angle sum property, हमें पता है कि sum of angles of a triangle, let me just change the marker, is 180 degree, right। So यानी कि हम इन तीनों एंगल्स को अगर प्लस कर दें तो वो टोटल किसके इक्वल होगा 180 के, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट दैट। सो एंगल CBE, लेट मी जस्ट करेक्ट दैट, प्लस एंगल BCE प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 180। तो आप देख सकते हैं यहां पे एंगल B, C और E तीनों का सम क्या हो गया 180। आप देख सकते हैं एंगल B को मैंने क्या लिखा है CBE, फिर एंगल C को मैंने क्या लिखा है BCE, फिर एंगल E को मैंने क्या लिखा है CEB, राइट। सो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180। अब यहां पे मुझे एंगल B की वैल्यू पता है दैट इज 30, प्लस एंगल C की वैल्यू मुझे पता है दैट इज 90, प्लस एंगल CEB मुझे नहीं पता, वो मुझे फाइंड आउट करना था। यानी कि आप देख सकते हैं यहां पे मुझे इसको प्रूव कितना करना है 60 डिग्री, राइट। सो लेट मी जस्ट चेक आउट कि इसको सॉल्व करके हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। सो लेट मी फर्स्ट रब दिस ऑन द डाउन साइड। नाउ यू कैन सी 30 प्लस 90 दैट इज 120 प्लस एंगल CEB इक्वल टू 180। अब यहां से 120 तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो एंगल CEB will be 180 minus 120, so 180 minus 120 that is 60 degree, right। so आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल CEB जो है वो मैंने कितना प्रूव कर दिया 60 डिग्री, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखें इस वाले फिगर को, सो CEB एंगल मैंने कितना प्रूव कर दिया 60। सो आप चाहे तो CEB बोल लीजिए या फिर AEB बोल लीजिए, बात तो एक ही है क्योंकि पॉइंट तो E ही है ना जिसके ऊपर एंगल बन रहा है, राइट। सो CEB can be written as AEB also, right? Or you can say angle AEB is 60 degree, right? And this is what we have to prove in this question कि ये जो angle AEB है वो कितना है 60 degree. So you can see quite a just lengthy question here, but if you just keep your focus on the right path here and just apply on the steps that I have taken, so आप यहाँ पर angle AEB को क्या prove कर देंगे 60 degree का, right? So you can see that was all in this example here. So students, let us move on to the next example now. So you can see example number 4 here is
that in figure 10.33 you can see this figure here, ABCD is a cyclic quadrilateral, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD, so ये यहाँ पे एक cyclic quadrilateral है. अब आपको पता है अच्छे से कि ये cyclic quadrilateral क्यों है, क्योंकि इसके चारों vertices जो हैं वो सर्कल की circumference के ऊपर लाई कर रहे हैं, right? Now you can see in which AC and BD are its diagonals. So आप देख सकते हैं इस क्वाड्रिलेटर के ABCD के AC और BD क्या है, diagonals है, right? You can see the line joining the opposite vertices. वो क्या होती है, diagonals होती हैं. So A और C को ज्वाइन करके जो बन रहा है वो क्या है, diagonal AC, और B और D को ज्वाइन करके बन रहा है वो है diagonal BD. So यहाँ पे ये given है. Now if angle DBC, let me just mark it. So DBC, यानी this angle is given to us as 55 degrees and angle BAC. Let me just check out BAC. That means this angle is 45 degrees, right? अब मुझे find out क्या करना है, angle BCD. So let me just mark that. So BCD. That means this complete angle is what we have to find out, right? So हम कैसे find out करेंगे? सबसे पहले जो given thing है हम वो लिख लेते हैं. So the solution is, you can see ABCD is a quadrilateral, वो भी cyclic, right? So you can see in which AC and BD are diagonals. So this is the given things. Also you can see angle DBC है वो हमें 55 degree given है and angle BAC is 45 degree. Now to find out is, you can see angle BCD. So हमें angle कौन सा find out करना है, angle BCD. So let me just start off with theorem 10.9. So अगर आपको ध्यान हो, so theorem 10.9 says that angles in the same segment are equal. So अगर आपको ध्यान ना हो तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये थ्योरम अगेन. सो सबसे पहले यहाँ पे ये थ्योरम यूज होगी. आप देख सकते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, राइट? सो दैट मीन्स कि अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं, सो PQ इज अ कोड. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो और पॉइंट्स हैं, यू कैन सी, यू कैन कॉल देम, यू कैन सी C एंड D सपोज, राइट? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो PQ आर्क बोल लीजिए या कोड बोल लीजिए, व्हाटएवर यू कॉल. सो ये C पे कौन सा एंगल बनाएगी, PCQ. सो एंगल PCQ. नाउ PQ D के ऊपर कौन सा एंगल बनाएगी, PDQ, राइट? सो एंगल PDQ. अब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये C और D जो है आप देख सकते हैं सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं. आपको सेगमेंट ध्यान होगा जो कोड आर्क के रिस्पेक्ट में बनाती है. सो ये कौन सी थी, माइनर सेगमेंट, राइट? और ये जो बड़े वाली थी ये पूरी, ये क्या थी, मेजर सेगमेंट, राइट? आप देख सकते हैं जो मेजर आर्क है वो कोड के साथ क्या बनाती है, मेजर सेगमेंट. और जो यू कैन सी माइनर आर्क है वो कोड के साथ क्या बनाती है, माइनर सेगमेंट. सो इफ यू जस्ट रिमेंबर थ्योरम 10.9 दैट सेज इफ द पॉइंट्स लाई इन द सेम सेगमेंट देन यू कैन सी एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क in the same segment are equal. So you can say the theorem 10.9 says that angles in the same segment are equal, right? So using this theorem we can say that अगर आप यहाँ पे CD arc की बात करें, or you can say CD chord here, whatever you call it. So ये यहाँ पे CD chord जो है वो B और A पॉइंट पे एंगल कौन से बना रही है, CBD एंड CAD. ये दो एंगल बन रहे हैं. सो यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो ये 55 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 55. गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन सी CD जो कोड है वो इन दोनों पॉइंट्स पे क्या एंगल बना रही है, CBD एंड CAD, राइट? यू कैन सी हियर. अगर आपको यहाँ पे नोटिस नहीं हो रहा, सो लेट मी जस्ट शो यू इन अ अलोन स्ट्रक्चर हियर लाइक दिस, राइट? सो आप देख सकते हैं ये जो CD है वो यहाँ पे B और A पॉइंट पे कौन सा एंगल बना रही है, CBD एंड CAD. अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये 55 डिग्री गिवन था. सो दैट मीन्स ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री. सो यू कैन सी एंगल CBD विल बी इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू 55 डिग्री. सो दैट इज
angle CAD is now 55 degrees. So ये हमने यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया. Now you can see अब ये दोनों एंगल्स मिला के क्या एंगल बना रहे हैं? BAD. So let me first make some space here. Now remember that we have to find out angle BCD. This is our task here in this question. So यहां पे आप देख सकते हैं that this angle BAD is equal to angle BAC plus angle CAD. Right? आप देख सकते हैं ये BAD एंगल कैसे बनेगा? BAC plus CAD. So इन दोनों को मिला के बना. So let me just add them. So 45 plus 55. So कितने हो गए? 5 plus 5 10. Then 6 plus 4 10. So यहाँ पे आपके पास एंगल BAD जो है टोटल कितना हो गया? 100 डिग्रीज. राइट? आप देख सकते हैं एंगल BAD क्या होगा इनका टोटल, और इनका टोटल कितना होता है? 100. So अब आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी while discussing the topic cyclic quadrilaters. Let me just tell you here by the help of a diagram. So आप देख सकते हैं 4 points you can see here lying on, you can see the circumference of the circle. So this figure will be a cyclic quadrilateral. So यहाँ पे मैंने आपको बताया था that the opposite angles of a cyclic quadrilateral will have the sum as 180 degree. So यहाँ पे opposite angles का sum क्या होता था? 180 degree, both the pairs, right? ये मैंने आपको भी बताया था. So you can see यहाँ पे ये पूरा एंगल A और पूरा एंगल C, ये दोनों आपस में क्या है? Opposite angle का pair है. So their sum will be 180 degree because we know that the sum of, you can see either pair of a cyclic quadrilateral, the sum of opposite angle pair of a cyclic quadrilateral is 180, right? So by the help of that, let me just tell you. Also you can say we know that sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is, you can say, 180 degree, right? So that means कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल BAD will be adding on to BCD will total to 180 degree. So आप देख सकते हैं इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180. So BAD plus BCD will be equal to 180 degree, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एंगल BAD की वैल्यू है that is 100 plus angle BCD is equal to, you can see 180 degree. So यहाँ से 100 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. So एंगल BCD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 minus 100. So ये प्लस का 100 से क्या होगा? माइनस का. So 180 minus 100 that will be 80. So यहाँ पे आपके पास एंगल BCD की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, राइट? सो यू कैन सी दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट angle BCD in this question, right? So quite easy, just you have to remember the theorem here that angles in the same segment are equal. Then further we know a property of a cyclic quadrilateral that the sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 degrees. So getting that, you can see you will extract the value of the angle BCD required here, right? So that was all in this type of question here.